Hello students, good morning. Jai Narayan. All of you, welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your value education teacher. So now we will start directly page number 59, learning from Gandhiji. So all of you open your page number 59, lesson learning from Gandhiji. So we will start our lesson learning from Gandhiji. But before starting our lesson, first I will show you one video about the Mahatma Gandhi. So all of you look at here. Mahatma Gandhi, father of the nation. Mahatma Gandhi is October 2 called the father is a of very nation. important day for our country. We celebrate this day as Gandhi Jayanti. It is the birthday of Mahatma Gandhi, the father of our nation. We also call him Bapu with great respect and affection. Long ago, on this day in 1869, a cute little baby was born in Porbandar town in Gujarat. Father Karamchand Gandhi and mother Putlibai named the baby Mohan. Mohandas Karamchand Gandhi. As a child, he was greatly influenced by the honesty and strict discipline of his father and by the simplicity and religious thoughts of his mother. At a very early age, the shy little child learned great values of truthfulness, integrity, honesty, and discipline. He lived these values throughout his life and rightly demonstrated the power of these values to the entire world. When Mohan grew older, like many other teenagers, he also fell in bad company and picked up a few bad habits such as smoking and stealing. But soon he realized his mistakes and decided to confess. He wrote down everything on a piece of paper and put it in the hands of his father, who was then sick. In the letter, he asked for punishment and promised never to repeat the mistakes. His father read the letter and, without uttering a word, tore up the paper with a deep sigh. Tears rolled down his cheeks and he lay down. Seeing his father's sorrow, Mohan was deeply grieved. He realized how much his father loved him. Later on, he came to understand that it was his honest confession that made his father react in this totally unexpected, non-violent way. This incident left a lasting mark on his mind. He realized the power of truth. From that day, he resolved to always tell the truth. The incident also revealed to him the calming and healing power of non-violence or ahimsa, which could transform everything. Later, he thus took it up as a weapon in our country's struggle for freedom. After passing his matriculation examination, Mohan attended college at Bhavnagar. At that time, the idea of going to England fascinated him. His elder brother then decided to send him to England to become a barrister. He left for England in September 1888. After finishing his studies, he returned to India and started practice as a lawyer
in Rajkot. After some time, an offer came to him to go to South Africa as a legal advisor to an Indian firm. Mohandas accepted the offer, and in May 1893, he went to Natal in South Africa. In those days, there was discrimination between the white and the colored people. In South Africa, Indians were ill-treated and disgraced. They were called coolies. Very soon, Gandhiji too had his share of this experience. He was traveling in a train to Pretoria in a first-class compartment. On the way, a European passenger entered the compartment and found Gandhiji in it. He complained to the station master, "Take this coolie out and put him in a lower class." Gandhiji raised an objection that he had a first-class ticket, but nobody heard him. A policeman pushed him out with his bag and baggage. It was a very humiliating experience. He decided to fight against this inhuman color discrimination and help the Indians living there in their struggle for civil rights. However, unlike other contemporary protesters, he took up the weapons of truth and non-violence, which he later named as Satyagraha, to fight against the injustice. He called a meeting of the Indians in Pretoria and told them to form a league. This was his first public speech. It caused a new awakening among Indians. Gradually, he became the leader of the Indian community in South Africa. After coming back to India in 1915, Gandhiji decided to fight against the injustice of the British towards his countrymen. Very soon, many people from all over the country joined him. They started calling him Bapu, the father, and Mahatma, the great soul. Along with his followers, Gandhiji non-violently united the whole of India against the British rule. The British arrested Bapu and his followers and sent them to jail on many occasions, but it did not deter them fighting against injustice. Gandhiji emphasized on Satyagraha as the method to be followed in the national movement against the British. He insisted on showing passive resistance, non-violent disobedience, boycotts, hunger strikes, and so on in the freedom movement. Finally, the British understood that it would not be possible to rule India in the face of such opposition and decided to go back to their own country. Our country got independence on August 15, 1947. It was the first time in the history of the world and mankind that a huge victory was achieved by Satyagraha. Mahatma Gandhi inspired millions of people the world over to take the path of non-violence and civil disobedience. The whole world has recognized the greatness of Bapu and his novel method of Satyagraha or non-violent protest. So I hope all of you nicely like video about the Mahatma Gandhi. So now we'll start our lesson. So our lesson is learning from Gandhiji. So now look at here. Be clever, make something. अगर हम clever है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. Okay. So have you ever
हैव यू एवर लॉस्ट अ पेन? आपने कभी आपकी पेन लॉस्ट की है? हाउ डिड यू फील वेन यू लॉस्ट इट? जब हमने हमारी पेन को लॉस्ट किया है तो हमें कैसा लगा है? वी विल फील अ सैड. डिड यू नो, ये आपको पता है, दैट गांधी जी आल्सो लॉस्ट अ ब्यूटीफुल पेन वंस? आपको पता है गांधी जी ने भी एक बार उनकी पेन लॉस्ट हुई थी, ब्यूटीफुल पेन लॉस्ट हुई. समवन स्टोल इट, किसी ने उनकी जो पेन थी वो क्या कर रही थी? स्टोल की थी. बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसेट, विदाउट अपसेट हुए उन्होंने क्या किया? लुक एट हियर. ही थॉट आई वॉज अ केयरलेस टू लीव अ ब्यूटीफुल पेन लाइंग अराउंड. और उन्होंने क्या सोचा कि मैं ही केयरलेस हूँ कि ये जो ब्यूटीफुल है वो मैंने ऐसे छोड़ दी लाई करने के लिए. इट वुड टेम्पलेट समवन टू स्टेल इट. मैंने वो पेन ऐसे रख दी कि वो कोई भी क्या कर सकता है? उसको चुरा सकता है, स्टोलन कर सकता है. तो वो ऐसे खुद को समझने लगे. सो ही मेड अ पेन यूजिंग अ पेन होल्डर एंड अ निप. फिर उन्होंने क्या किया है? पेन होल्डर और नीप यूज करके उन्होंने एक नई पेन बनाई थी. सो ही मेड अ पेन यूजिंग अ पेन होल्डर एंड अ निप. पेन होल्डर और निप को पकड़ के उसको उन्होंने एक पेन बनाई. आफ्टर अ सम टाइम, कुछ दिनों के बाद, द नीम गॉट बेंड. जो नीप थी उनकी पेन की वो क्या हो गई? बेंड हो गई. वॉट डिड गांधी जी डू नेक्स्ट? फिर नेक्स्ट गांधी जी ने क्या किया होगा? नाउ लुक एट हियर. ही सिंपली शार्प्ड द टिप ऑफ अ पीसेस ऑफ वुड. उन्होंने क्या किया? ही सिंपली शार्प द टिप ऑफ पीसेस ऑफ वुड. उन्होंने क्या किया है? एक वुड लिया और उसको क्या किया है? शार्प किया. जैसे हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल कैसी होती है? वुड की रहती है. तो वैसे उन्होंने क्या किया है? एक वुड का पीस लिया है और उसको क्या किया है? सामने से शार्प किया. एंड डीप इन इंक. और उन्होंने क्या किया है? उसको शार्प करके उसको इंक में डिप कर दिया. इट वॉज नॉट ईजी. ये करना ईजी था क्या? नो. बट ही रोट हिम इट एवरी डे. उससे लिखना ईजी नहीं था, लेकिन वो क्या करते? एवरी डे उसके साथ वो यूज करके लिखते थे. ही गॉट यूज टू इट. फिर वो रोज एवरी डे उसको यूज करते थे. उसकी वजह से उनको क्या हो गए? अच्छे से प्रैक्टिस हो गई और वो फिर उससे अच्छे से लिखने लगे. He had no problem using pen with a bent nips again. फिर उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ कि वो कौन से भी निप को बेंड हुए उसने लिखी. मतलब वो जो वुड है, वुड की जो उन्होंने पेन बनाई थी वो क्या नहीं होती थी? बेंड नहीं होती थी. जो हमारी होती है पेंसिल है, पेंसिल कभी क्या होती है? बेंड होती है क्या? नहीं. तो उन्होंने जो बनाई थी, लुक एट हियर, ऐसे उन्होंने एक पेन बनाई थी. सामने से क्या किया था? उन्होंने शार्प किया था और वो क्या करते थे? इंक में डीप करके उसके साथ वो लिखते थे. एंड दिस पेन वॉज नेवर स्टोलन. और किसी ने कभी भी वो पेन क्या नहीं की? स्टोल नहीं की, चुराई नहीं. गांधी जी कुड राइट विथ अ बोथ हैंड. गांधी जी उनके दोनों हाथ से भी लिखते थे. वेन वन हैज फेल्ट टायर्ड. जब वन हैंड क्या होता था? टायर्ड होता था. ही वुड जस्ट यूज अनदर हैंड. जब उनका वन हैंड टायर्ड होता था तो वो क्या करते थे? दूसरे हाथ से लिखते थे. तो वो लिखते समय क्या करते थे? दोनों हैंड का यूज करते थे. सो ये लर्निंग फ्रॉम द गांधी जी. अगेन वन टाइम वी विल रीड. बी क्लेवर, मेक अ समथिंग. अगर हम क्लेवर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. सो हैव यू एवर लॉस्ट अ पेन? कभी हमने हमारी पेन लॉस्ट की? यस. हाउ डिड यू फील व्हेन यू लॉस्ट इट? जब हमने हमारी पेन को लॉस्ट किया तो हमें कैसा फील होता है? वी विल फील वेरी सैड.
Did you know that गांधी जी also lost a beautiful pen once again? एक बार गांधी जी ने भी क्या किया थे, उनकी पेन को लॉस किया था. Someone stole it, किसी ने उनकी पेन स्टोल कर दी. But instead of getting upset, उन्होंने अपसेट विदाउट अपसेट हुए, ही थॉट, उन्होंने सोचा, आई वॉज केयरलेस टू लीव अ ब्यूटिफुल पेन लाइंग अराउंड. वो सोचने लगे कि मैं ही केयरलेस हूँ कि मैंने पेन ऐसे छोड़ दी किसी को चुराने के लिए. इट वुड टेम्पलेट समवन टू स्टेल इट. ही मेड अ पेन यूजिंग अ पेन होल्डर एंड निब. फिर उन्होंने एक पेन बनाई, उसमें क्या यूज़ किया, पेन होल्डर और निब को यूज़ करके उन्होंने एक पेन बनाई थी. आफ्टर अ सम टाइम, फिर कुछ टाइम के बाद, द निब गॉट बेंड. जो निब थी वो क्या हो गई, बेंड हो गई. वॉट डिड गांधी जी टू डू नेक्स्ट. फिर गांधी जी ने नेक्स्ट क्या किया, ही सिंपली शार्प द टिप ऑफ पीस ऑफ द वुड. उन्होंने क्या किया, एक पीस लिया वुड का और उसको शार्प किया. डिप्ड इनटू द इंक, और उन्होंने इंक में डिप किया. इट वॉज नॉट ईजी, वो क्या नहीं था, ईजी नहीं था. बट ही रोट विथ अ एवरी डे, लेकिन वो क्या करते थे, एवरी डे रोज लिखते थे. स्टिल ही गॉट यूज टू इट. फिर वो रोज लिखते थे और फिर एक दिन क्या हो गया, वो उसको यूज ही कर सके, मतलब उनको अच्छे से उससे लिखना आ गया. ही हैड नो प्रॉब्लम यूजिंग पेन विदाउट बेंड निब्स अगेन. फिर उनको कभी भी पेन में बेंड आने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. एंड दिस पेन वॉज नेवर स्टोलन, और वो पेन कभी भी क्या नहीं होगी, स्टोलन नहीं हुई, किसी ने चुराई नहीं. गांधी जी कुड राइट विद बोथ हैंड. गांधी जी क्या करते थे, दोनों हाथ से लिखते थे. व्हेन वन हैज इज फेल्ट टायर्ड, वन हैंड क्या होता था, टायर्ड होता था. ही वुड जस्ट यूज अ अदर हैंड. वन हैंड क्या होने के बाद, टायर्ड होने के बाद वो दूसरे हैंड से वो लिखते थे. सो दिस इज अवर लेसन. नाउ लुक एट हियर, टॉक अबाउट दिस. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपको लिखने नहीं है, सिर्फ टॉक करना है, बोलना है. ठीक है. What do you learn from this lesson? What do you learn from this lesson? इस लेसन से हमने क्या पढ़ा था. सो स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू थिंक, सोचो आपने क्या पढ़ा है इस लेसन से. We learn from this lesson. What you had learned from this lesson? When we are lost some things, so we will never get a what? We will never get a. Again one time, okay? What is the question? What do you learn from this lesson? What do you learn from this lesson? इस लेसन से हमने क्या पढ़ा है? What is the lesson? Be clever and make something. जब हमारी कोई भी क्या होती है, कुछ चीज़ क्या हो जाती है, गुम जाती है, लॉस्ट होती है, तो उसके जगह पे हमें क्या करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि अब हमें क्या करना चाहिए उस चीज़ के लिए. अगर हम क्लेवर है तो, जैसे महात्मा गांधी जी की क्या हो गई थी, पेन लॉस्ट हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके जगह पे दूसरी पेन बनाई और उन्होंने क्या किया, उन दूसरों पे गलती पे क्या बोला कि मैं ही केयरलेस हूँ, उसके वजह से मैं क्या कर गई हूँ, मेरी पेन को लॉस करी. सो वे what you had learned from this lesson? We had learned from this lesson when we are lost our anything, so instead of we will not getting upset, so we will make another things in the प्लेस ऑफ दिस थिंग. हम क्या करेंगे, अपसेट विदाउट अपसेट हुए हम सोचेंगे कि उस थिंग के जगह पे हम क्या कर सकते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डू वी समटाइम्स टेम्प्ट पीपल टू डू रॉन्ग थिंग्स सच एज अ स्टेलिंग. अगेन, हाउ डू वी समटाइम्स टेम्प्ट पीपल टू डू रॉन्ग थिंग्स सच एज स्टेलिंग. क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं,
हाउ डू इज समथिंग, हम क्या करते हैं, हमारी चीज़ कहीं पे भी रख देते हैं और जो कुछ लोग हैं उसको चोरी कर देते हैं। सो क्यों होता है ऐसे? बिकॉज वी आर अ केयरलेस, हम कैसे हैं, केयरलेस है और हम अपनी चीज़ कहीं पे भी रख देते हैं। तो क्या करते हैं, कोई लोग उसको क्या करते हैं, उसको चुरा देते हैं, स्टोल करते हैं। So we will not keep our things in the proper place. So some peoples are that thing are the stolen. So this is the question. ठीक है, so ये क्वेश्चन आंसर आपको नहीं लिखना है। देन नाउ लुक एट हियर समथिंग टू ट्राई, इसके बारे में ट्राई करेंगे। ट्राई टू मेक अ पेन फ्रॉम अ ओल्ड वुडन पेंसिल। अगर आपके पास ओल्ड वुडन पेंसिल है, शार्प द एजेस सो दैट यू कैन डीप इनटू द इंक। उसको क्या करने के लिए बोला है? फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल है, ओल्ड वाली पेंसिल लेना है और आपको उसको शार्प करना है और शार्प करके क्या करना है, इंक में डीप करके लिख के देखना है। दिस इज़ नॉट कंपल्सरी, ओके, ये आपको करने की कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पे दिया है इसलिए बता रही हूँ मैं। यू कैन मेक यूर पेन ब्यूटीफुल बाय अ स्टिकिंग फेदर्स एंड थ्रेड ऑन इट्स। क्या बोल रहे हैं, आपके पेन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए स्टिकिंग फेदर्स एंड अ थ्रेड, ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप उस पर कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं, थ्रेड लगा सकते हैं, कुछ स्टिकर लगा सकते हैं। नाउ सी इफ़ यू कैन राइट विथ इट, और फिर हम देखेंगे कि उससे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। सो दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। आपके घर में इंक है, पुरानी पेंसिल है, तो आप करके देख सकते हो, नहीं तो नहीं भी करेगा तो चलेगा, ठीक है। नाउ ये वाला आप कर सकते हैं। सो नाउ लुक एट इट। इन द स्पेस बिलो, यहाँ पे एक स्पेस दी है। राइट यूर नेम फर्स्ट विथ यूर राइट हैंड। यहाँ पे क्या करना है, आपके राइट हैंड से लिख के देखना है आपको, एंड देन विथ यूर लेफ्ट हैंड लुक एट द डिफरेंस। आपको दोनों हैंड का यूज़ करके लिख के देखना है। वन साइड में ऐसे बीच में लाइन खींच दो, वन साइड में आपको राइट वाले हैंड से लिख के देखना है, वन साइड पे लेफ्ट वाले हैंड से लिख के देखना है, और आपको देखना है कि दोनों का डिफरेंस हैंड राइटिंग में कैसे आता है। तो लुक एट हियर, मैं ट्राई करूँगी, ठीक है। ये मेरा कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड है, तो मैंने पी लिख दिया है। उसके बाद आर ए, उसके बाद जे के टी ए। मेरा प्रॉपरली नहीं आ रहा है क्योंकि मैं प्रॉपरली नहीं लिख रही हूँ, लिख नहीं सक रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में एक मोबाइल है और बुक को मैं पकड़ नहीं सक रही हूँ। और अभी दूसरे हाथ से देखो, पी आर ए जे ए के टी ए, प्राजक्ता लिख दिया। तो दोनों का डिफरेंट देखो, जो जब मैंने लेफ़्ट वाले हैंड से लिखा था तो मुझे प्रॉपरली नहीं आया लिखना, और जब मैंने राइट हैंड से लिखा तो मैं प्रॉपरली लिख सकती थी। ये डिफरेंस है दोनों हैंड से लिखने का। बट महात्मा गांधी वॉज राइटिंग बाय यूजिंग द बोथ हैंड। महात्मा गांधी क्या करते थे, दोनों हैंड को यूज़ करके लिखते थे। सो दिस इज़ आवर लेसन लर्निंग फ्रॉम गांधी जी। So I hope all of you nicely understood lesson, and one thing, some lesson I dropped, ठीक है। मैंने कुछ लेसन ड्रॉप किए हैं, तो वो लिस्ट आपको आ जाएंगी कौन से लेसन मैंने ड्रॉप किए। सो आई होप all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.